নমস্কার বন্ধুরা, বাঙালি দর্শক যারা দেখছেন, এই মুহূর্তে যে ইন্টারভিউটা হবে এটা মূলত হিন্দিতে। আপনারা জানেন যে পশ্চিমবাংলায় এই মুহূর্তে এনআরসি ইত্যাদি নিয়ে বিষয়গুলো চলছে। দেশভাগের বলি হওয়া মানুষগুলোকে আবার তাদের সর্বশান্ত করা, তাদেরকে শেষ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। এবং এনআরসি সি এর যে আইন, সে সমস্ত নিয়ে বামসেফ সারা ভারতব্যাপী কিন্তু আন্দোলন করেছে এবং 2003 সাল থেকে। কিন্তু তারপরেও দেখা যাচ্ছে যে পশ্চিমবাংলায় এই এনআরসি ইস্যুটাকে নিয়ে যেমন ভোট করানোর রাজনীতি হচ্ছে, একই সাথে ধীরে ধীরে বিভিন্ন ধরনের আধার কার্ডের মাধ্যমে, লিঙ্কের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য নিয়ে সেগুলোকে ধীরে ধীরে কিন্তু তাদের ডিটেক্ট করা, অর্থাৎ কারা দেশভাগের বলি হয়ে এসেছিল সেই মানুষগুলো চিহ্নিত করার মাধ্যমে নতুন করে তাদেরকে শেষ করার একটা উদ্যোগ নিয়েছে বিজেপি। কিন্তু সামনে বলছে আমরা নাগরিকত্ব দেব, কিন্তু কোনো আইনে সেই নাগরিকত্ব দেওয়ার কোনো রকম শর্ত বা রুল এখনো পর্যন্ত নেই। এবং ভারতবর্ষের যে সিএ আইন 2003 সালের আইন, যেটাকে এনআরসি আইন বলে, সেই আইনের যে আইনে এনআরসি হচ্ছে, অর্থাৎ সেই আইনের 14 নম্বর ধারা অনুযায়ী সেই এনআরসির বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু সেই শর্তগুলো কিন্তু এখনো রয়েছে। অর্থাৎ 1948 সালের আগের দলিল থাকতে হবে, তবেই কিন্তু আপনি ভারতীয়, নয়তো তার পরবর্তীকালে এলে আপনাকে প্রমাণ দিতে হবে, অ্যাপিল করতে হবে, নানা রকম, না পারলে আপনাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে বা ডিটেনশন ক্যাম্পে ঢোকানো হবে। এই ধরনের আন্দোলন পশ্চিমবাংলায় চলছে। কিন্তু দেশব্যাপী আমরা দেখছি জল, জমি, জঙ্গল সবকিছু উচ্ছেদ করার জন্য মূল নিবাসী মানুষকে সমস্ত রকম ভাবে মেরে ফেলছে। অর্থাৎ সাংবিধানিক অধিকার, জল জঙ্গলের অধিকার, মানবাধিকার, এমনকি সংরক্ষণের অধিকার, সমস্ত জায়গা থেকে তারা কিন্তু এই মানুষগুলোকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করছে এবং সংবিধান পর্যন্ত তারা ধ্বংস করার জন্য আগামী 24 যে লোকসভা নির্বাচন আছে তারপরে তারা কিন্তু প্ল্যানিং করেছে, যেহেতু আরএসএস এর 100 বছর পূর্ণ হবে, তারা সংবিধানটাকে পর্যন্ত চেঞ্জ করবে। এরকম অবস্থায় যখন সারা দেশ জুড়ে একটা মূলনিবাসী কনসেপ্টে, অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, মাইনরিটিস, এই কনসেপ্টে যখন মূলনিবাসী আন্দোলন চলছে, যার নেতৃত্বে বামসেফ সহ ভারতবর্ষে অনেক সংগঠন আছে, কিন্তু এই আন্দোলন যখন দানা বাঁধছে, তখন সেই মুহূর্তে পশ্চিমবাংলায় একজন বিখ্যাত উদ্বাস্তু নেতা সুকৃতি রঞ্জন বিশ্বাস একটি বই লিখেছেন, মূলনিবাসী বনাম জিন তত্ত্ব। মানে তিনি এই মূলনিবাসী আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য ব্রাহ্মণদের হয়ে কলম ধরেছেন, নিজে একজন মূলনিবাসী লোক হয়েও। এবার ব্যাপারটা হচ্ছে, তিনি বলছেন যে এই ডিএনএ তথ্য বা জিন তথ্য এটা পুরোটাই ফেক, মূলনিবাসী কনসেপ্টটাও ফেক। কারণ এই যে কথাগুলো বলছে, এই বিষয় নিয়ে ভারতবর্ষে মূলনিবাসী কনসেপ্ট বা ডিএনএ রিপোর্ট নিয়ে যে আন্দোলনটা হয়েছিল, সেই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান মুখ ভারতবর্ষের, তিনি হচ্ছে বিলাস রাজ সাহেব। তার কাছে আমরা জানবো যে এই ডিএনএ তথ্যটা কি এবং কার বেসিসে মূলনিবাসী যে কনসেপ্ট, সেই কনসেপ্টটা কতটা যুক্তিযুক্ত, কতটা বিজ্ঞানসম্মত, এই বিষয়টা আমরা জানবো। सर, अभी जो मूलनिवासी मूवमेंट चल रहा है, जिसका जो भित्ति है, जो जिसका ग्राउंड जो है डीएनए जो है, जिसको जिन तत्व बोलते हैं हम लोग बांग्ला में, तो इसका बारे में बताइए, क्योंकि काफी लोग हैं जो मूलनिवासी बोलते हैं खुद को, लेकिन ये मूलनिवासी कॉन्सेप्ट का पूरा विरोध कर रहा है, किताब भी लिख रहे हैं, आपको बताया अभी। तो ये क्या है इसका जो लोग साइंटिफिक आधार क्या है? जो लोग वर्तमान में डीएनए को अमान्य करेंगे, उन लोगों को आउटडेटेड माना जाएगा। और जिस व्यक्ति का आपने जिक्र किया, आप दर्शक को पूरी जानकारी नहीं दे रहे, थोड़ी अधूरी दे रहे हैं। पूरी जानकारी ये है कि वो ब्राह्मण का रिश्तेदार बन गया है। जो ब्राह्मण को रिश्तेदार मान रहा है, उसके घर में ब्राह्मण की लड़की लाई है, वो क्यों ब्राह्मण के खिलाफ बोलेगा? उसकी अपनी निजी कमजोरी है ना, वो चुनाव लड़ना चाहता होगा, वो कोई किसी ट्रैप में फंस गया होगा। तो ऐसे व्यक्ति को हम फालतू व्यक्ति मानते, जो ब्राह्मण को रिश्तेदार बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति का तो नाम तक नहीं लेना चाहिए आपको। आपको सिद्धांत के आधार पर बोलना है, बोलो ना। अभी जो डीएनए का जो कॉन्सेप्ट वो बोल रहे हैं कि खराब है, मूलनिवासी कॉन्सेप्ट वो विद्वान है क्या? वो विद्वान है क्या? वो रिश्तेदार है ना। मैं सादी भाषा में कहूं, वो ब्राह्मणों का दलाल भड़वा है। वो साइंटिस्ट है क्या? नहीं। उसने कोई डीएनए रिपोर्ट पब्लिश किया क्या? नहीं। वो कोई आंदोलन चला रहा है क्या? वो रिश्तेदारी कर रहा है। तो रिश्तेदारी के लिए चर्चा का विषय है तो बंद करो। तुम ज्ञान की चर्चा करना चाहते करो। अभी जो मूलनिवासी कॉन्सेप्ट है और जो डीएनए है, अभी मैं तुम्हें बताता हूं। हम लोग फुले शाह अम्बेडकर की अनुयायी, तो हम फुले शाह अम्बेडकर की अनुयायी है। तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा, लिखित में कहा
कि ब्राह्मण फॉरेनर्स है। बाबा साहब अंबेडकर ने लास्ट में एक स्पीच किया इधर वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में, 26 नवंबर 1956 में। तो वहां का आर्य ब्राह्मण बाहर से आए और यहां आने के बाद उन्होंने यहाँ के लोगों को तोड़ा और तोड़कर उनको वर्ण व्यवस्था में गुलाम बनाया। तो बाबा साहब अंबेडकर उनको फॉरेनर्स कह रहे हैं। अभी हमारे महापुरुषों ने कहा, बाल गंगाधर तिलक ने 1903 में किताब लिखी आर्टिक्ट होम इन दी वेदास, उसमें कहा हम जहां से आए वो बात और डीएनए की बात 100% मैच हो रही है। राहुल सांकृत्यायन ने कहा होलगा से गंगा में कि हम बाहरी लोग हैं। यहां आपके बड़े कवि हो चुके हैं और जिनको बड़ा नाम लेते हैं बंगाल में, रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने कहा कि ब्राह्मण विदेशी है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, और उसके लिए तो एपिसोड चले थे और वो दृश्य रूप में दिखाया था हम कैसे आए। अपनी लड़की को लेटर लिखा, लेटर्स टू इंदिरा, उसमें लिखा कि बेटा हम विदेशी है, हम इन लोगों को गुलाम बनाया। आगे जाकर नेहरू ने कहा हम लोग वहां से क्यों आए होंगे, तो हम लोगों में खाने का झगड़ा चल गया होगा और हमको रोटी नहीं मिल रहा था, तो हम रोटी ढूंढते ढूंढते यहाँ आए और यहाँ की वातावरण अनुकूल था और यहाँ सब कुछ सही था, तो हमने यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया। अब डीएनए क्या कह रहा है? 2001 में डॉक्टर माइकल बामशाद ने डीएनए टेस्ट किया, तो उसने केवल डीएनए टेस्ट नहीं किया, तो उसके अंदर उसने एक टेस्ट किया, वो टेस्ट है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, यानी ब्राह्मण पुरुष का डीएनए और उसकी जो महिला है ब्राह्मणी उसका डीएनए उसके साथ नहीं मिला, बल्कि उस ब्राह्मण महिला का डीएनए यहां के जो नेटिव पीपल थे उनके साथ मिला, और ब्राह्मण पुरुष का डीएनए काले समंदर के किनारे रहने वाले जो देश है उनका वेस्ट यूरेशिया, उन स्टेप पैस्टोरलिस्ट लोगों के साथ इनका डीएनए मिला, और उनकी औरतों का डीएनए वहां न मिलने की बजाय यहां मिला। तो उसने ये खोज किया ब्राह्मण तो फॉरेनर्स है, मगर उन्होंने जातियों का निर्माण क्यों किया? क्योंकि वो फॉरेनर्स है और इतने बहुसंख्य लोगों पर वो राज नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने कास्ट और वर्णा सिस्टम बनाई, और कास्ट और वर्णा सिस्टम में अपने औरत को भी शूद्र कहा। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कह रहा है ये 2001 का डीएनए, 2017 में भी हुआ, 2019 में भी हुआ। और राखीगढ़ी डीएनए में जिस महिला का डीएनए मिला वो 4700 साल पुराना है। 125 साइंटिस्ट लोगों ने उसी साल 2018 और 2019 में द साइंस जर्नल में उनका डीएनए रिपोर्ट आया, तो उनका कहना है कि ब्राह्मण्स निकले थे अपने देश से BC 3300 में निकले, तो एकदम भारत में नहीं है, एकदम यूरोप में नहीं गए, एकदम कजाकिस्तान में नहीं गए, पीढ़ी दर पीढ़ी आते रहे। तो भारत में उनका आने का पीरियड है BC 2000, यानी आज से 4000 वर्ष पहले वो भारत में आए। तो वो लोग भारत में आए तो उन्होंने अपनी प्रजनन के लिए महिलाओं का इस्तेमाल किया, 3.5% लोग 3.5% महिलाओं का इस्तेमाल किया। तो माइकल बामशाद कह रहा है जाति का निर्माण करने के लिए यह सबूत है महिलाओं का डीएनए उनके साथ नहीं मिलता। और बाबा साहब अंबेडकर ने MA एंथ्रोपोलॉजी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में किया और उनकी थीसिस का टाइटल था कास्ट इन इंडिया। तो उस थीसिस में बाबा साहब ने लिखा ब्राह्मणों ने जाति का निर्माण करने के लिए महिलाओं का हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, और डीएनए कह रहा है जाति का इस्तेमाल करने के लिए ब्राह्मणों ने महिलाओं का इस्तेमाल किया। तो डीएनए केवल वंश का निर्धारण नहीं कर रहा है, जाति का ओरिजिन बता रहा है। ब्राह्मण विदेशी, अब ये डीएनए की बात है। ज्योतिबा फुले के समय में डीएनए नहीं था, मगर ज्योतिबा फुले के सामने तर्क था अगर ब्राह्मण मेरा सगा भाई होता तो मेरे ही भाई ने अछूत क्यों बनाया, जंगल में अपने भाई को क्यों खदेड़ा, अपने भाई को शूद्र क्यों घोषित किया। तो ज्योतिबा फुले का तर्क और डीएनए का तर्क 100% मैच हो रहा है।
इस बात को भी आप देखो, अगर जो लोग डिनाई कर रहे हैं डीएनए को, उसको डिनाई करने का अधिकार नहीं है। क्यों? उसको पहले अपना डीएनए टेस्ट करना होगा, उसके बाद बोलना होगा। सही। जो कोई व्यक्ति डीएनए साइंस को डिनाई करता है, उसके मतलब डीएनए में खराबी है, एक तो उसको मालूम होगा, या फिर उसने अपना डीएनए चेक करना चाहिए। अभी आखिरी मुद्दा जो आपने इंट्रोड्यूस में बताया, वही मुद्दे को पकड़ कर मैं बात करता हूं। बंगाल के साथियों से नम्र निवेदन है, केंद्र में बैठी हुई सरकार ये चोरों की, डाकुओं की सरकार है। चोरों की, डाकुओं की इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने आम लोगों के वोटों पर डकैती डाली और ईवीएम घोटाला करके केंद्र में सरकार बनाई। ये जो सीए एनआरसी का कानून बनाया है, ये संवैधानिक कानून नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर के समय में भारत के नागरिक को किसको माना जाए, तो बाबा साहब अंबेडकर ने यह व्याख्या की थी कि जो भी भारत में 14 जुलाई 1946 के बाद, क्योंकि 47 में भारत का विभाजन हुआ, तो इसलिए जहां से विवाद हुआ वो एक तारीख तय की, महीना तय किया, फलाना महीना फलाना तारीख के बाद जो भारत में पैदा हुआ वो भारत का नागरिक माना जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट वैल्यू में है, मगर वो इस बात को डिनाई कर रहे हैं। और आज ममता बनर्जी कह रही है कि सीए एनआरसी में आपकी नागरिकता बचानी है तो आपको वोटिंग के राइट्स आपके पास होने चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आसाम में वोटर आईडी दिखाया, फिर भी उसको नागरिक नहीं माना। कारगिल युद्ध में लड़ने वाला एक आर्मी मैन जिसको राष्ट्रपति पदक मिला, वो अपना पदक दिखा रहा है, मैं सीमा पर लड़ा हूं, ये जख्मी हुआ तो मुझे, वो मुसलमान है, राष्ट्रपति पदक मिला, उसकी दुख भरी कहानी है, उसके विथ फैमिली मेंबर है, 6-7 लोगों को नागरिक माना जा रहा है और इसको नागरिक नहीं माना जा रहा है। तो नागरिकता का अधिकार वर्तमान केंद्र सरकार ये कह रही है वोटर आईडी प्रमाण नहीं है, राशन कार्ड प्रमाण नहीं है, पासपोर्ट प्रमाण नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस प्रमाण नहीं है, रेसिडेंशियल प्रूफ प्रमाण नहीं है। तो सरकार कह रही है आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होगा, और वो कौन से समय का होगा, 1950 के पहले का बर्थ सर्टिफिकेट और 1971 के पहले का बर्थ सर्टिफिकेट। अभी बंगाल में आएगा तो बंगाल के लोगों को 171 के पहले का बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। मगर बंगाल के भाइयों को बताना चाहता हूं, बर्थ सर्टिफिकेट का एक्ट 1986 में बनाया गया। हमको डॉक्यूमेंट कब के माना रहे, हमको डॉक्यूमेंट कब के मांग रहे, पुराने। आप एक्ट कब बना रहे हो, अभी। तो ये खुल्लम खुल्ला धोखेबाजी है। हमारी तरफ से क्या डिमांड है, बंगाल के लोगों को, आम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। 29 नवंबर को ओबीसी कास्ट सेंसस के लिए और सीए एनआरसी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो सीए एनआरसी के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये मैसेज है हमारे तमाम मूल निवासी बहुजनों को, सीए एनआरसी जरूर की जाए, हमारी भी जिद है, मगर वो सरकार के कानून के तहत करनी है। तो उसमें ये अमेंडमेंट होना चाहिए, सीए एनआरसी जरूर करो मगर डीएनए बेस करो। डीएनए बेस पर तो ठीक नहीं पाएंगे। एकदम। ধন্যবাদ। ভিডিওটি আপনারা দেখলেন, কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট বক্সে করবেন এবং পরবর্তীকালে তাহলে আবার আপনাদের সামনে এসে হাজির হব। ধন্যবাদ।